वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन इम्पीरियन का टॉपिक लिया था, ठीक है, जिसमें हमने अट्यूनेशन, डिले डिस्टॉर्शन, नॉइस, ओके, तो ये सब रीजंस थे इम्प्रीमेंट्स के, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परफॉर्मेंस, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस, तो इस पे हम आज डिटेल स्टडी करेंगे उसका हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। सो परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज़ द मेन पॉइंट इन योर सिलेबस, ओके। सो द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम का अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है, so there are different parameters through which we can check the performance of that systems. For example, suppose there is a sine wave, which is the example of analog signal, okay. If we check the performance of this signal, so we require some parameter. We have to study the parameters of this signal, okay, just like the frequency, then amplitude, then time period, okay, then wavelength, okay. So these are the some parameters or standard parameters of a signal. When we check this parameter, then we know that the nature of signal, okay, how it will behave, ठीक है। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन ये पैरामीटर्स के ज़रिए मिलेगा। सेम थिंग फॉर द डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। व्हेन वी calculate or measure the performance of data communication network, then there are some parameters which have to be studied, okay, so that we can judge the performance of that data communication network. So नीचे यहाँ पे लिस्ट किया गया है पैरामीटर्स का। सबसे पहले बैंडविड्थ, ओके, सेकंड वन डिले, थर्ड वन इज़ द जिटर विच इज़ अ न्यू टॉपिक, एंड फोर्थ वन इज़ द थ्रूपुट, ओके. So these are the four parameters we have to study in detail to judge the performance of data communication network. Then we start one by one. So first we start with the bandwidth. So bandwidth is related to the transmission medium, okay. Suppose we have one sender and one receiver is there, and we have to transmit the information from the sender to the receiver. That is, sender is the transmitter and receiver is the RX, and we require the transmission medium to transfer the information or the message, okay. So the transmission is related to this medium, okay, means bandwidth is related to the your transmission medium, okay. So the bandwidth of the transmission medium is always greater than the channel capacity, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया चैनल कैपेसिटी, बिकॉज इफ देर आर मल्टीपल चैनल्स एट द इनपुट एंड, ओके, एंड वी हैव टू मक्स इट एट द transmitter end, and so that the output is only a single, because we have only single transmission medium through which these all the input channels will get transmitted one by one. So the bandwidth requirement of this channel will be a high. That will depend on the number of channel, okay. So the bandwidth requirement for transmission of digital signal will be more, or it will be a high, so it is better, ठीक है। तो जितना बैंडविड्थ ज़्यादा रहेगा, ओके, तो उतने नंबर ऑफ चैनल्स कैन बी स्मूथली ट्रांसफर थ्रू दैट ट्रांसमिशन मीडियम. So that is the first point of a performance, that is bandwidth, okay. क्योंकि अगर बैंडविड्थ नैरो है या छोटा है, then this number of channel cannot be easily pass, and it will forms the error in the this transmitted signal, okay. तो एरर्स हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है, क्रॉस टॉक हो सकता है, डिले डिस्टॉर्शन, दिस टाइप ऑफ एरर विल बी इंट्रोड्यूस, ओके. सो दैट्स वाई द बैंडविड्थ इज हायर फॉर द ट्रांसमिशन मीडियम. सेकंड पॉइंट विल बी अ डिले, ओके. सेकंड परफॉर्मेंस पैरामीटर विल बी अ डिले. So in that the processing delay may also include some other factors such as time required to check error, ठीक है.
तो अलग अलग टाइप्स के डिले, तो उसमें फर्स्ट है प्रोसेसिंग डिले, सेकंड क्यूइंग डिले, थर्ड इज़ द ट्रांसमिशन डिले एंड फोर्थ वन इज़ द प्रोपोगेशन डिले। मीन्स डिले जो पैरामीटर है, अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट सब टाइप्स, ठीक है। सो फर्स्ट वी टेक द प्रोसेसिंग डिले। सो दिस प्रोसेसिंग डिले इज़ ड्यू टू द चेकिंग द एरर्स, ठीक है। तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, व्हेन इट इज़ रिसीव एट द रिसीवर एंड, सपोज कंप्यूटर ए इज़ द सेंडर विच सेंड्स द data signal or the simpler file to the computer B which is receiver, okay. So at that time when that data will be received at the receiver end, it will check the for errors, okay. तो जो data send होगा that is the digital data which is in the form of binary numbers, means ones and zeros, okay. Suppose this is data which is in 4-bit form. Suppose it will be a 1 0 0 1 which is sent to the B computer, then B computer will check that frame, it is a frame. तो इस तरह से नंबर ऑफ फ्रेम्स हो सकते हैं डेटा में, दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डेटा, ओके. सो एट द रिसीवर एंड इट विल चेक दैट फ्रेम whether it is correct or not. If there is a change in bit, suppose it will be a 1001 and it will receive 1101, so there is a 1 bit error because we are sending 0 and it will receive as a 1, okay. So that processing of or checking of error requires some time, okay, and that time is nothing but the processing delay, ठीक है. The processing delay is of order of few millisecond or less, ठीक है. ये बहुत छोटा होगा, ठीक है. मिली सेकंड मीन 10⁻³ ओके. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल बट इट रिक्वायर्स, ठीक है. इतना टाइम तो भी उसमें लगेगा, और लेस देन दैट टाइप ऑफ डिले इज कॉल्ड एज अ प्रोसेसिंग डिले, ठीक है. एंड दिस इज द फिगर गिवन फॉर द पैकेट. सो पैकेट कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड द डेटा, okay. It contains the 2 regions, first one is header and second is data. Header consists of source and destination address, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया है, ठीक है. हेडर में सोर्स एंड डेस्टिनेशन मीन्स कौन सा कंप्यूटर या डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है एंड उसका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है. मीन्स कहाँ पे रिसीव होगा, तो ये हेडर के अंदर रहेगा, ठीक है. एंड द एक्चुअल डेटा विच इज़ अ बाइनरी डेटा, ओके, और डिजिटल डेटा. सेकंड टाइप ऑफ डिले इज queuing delay, ठीक है, queue delay. So at the queue the packet experience a queue delay when they wait to transmit on the links, ठीक है. queue means line, ठीक है. तो जो पैकेट्स होगा वो एक लाइंस में रहेंगे, ठीक है. इस तरह से अलग अलग पैकेट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है. सो दैट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन, ओके. सो दैट इज़ queue delay. So the queuing delay depends on the number of packets arrive earlier in the queue. तो अभी यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक सपोज आपका डेटा है, दैट डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है. सपोज इट हैज़ द 10 फ्रेम्स, सो दैट इज़ अ 1 फाइल सिंपली, ठीक है. तो एक फाइल में सपोज आपके 10 फ्रेम्स है, ठीक है, क्योंकि जो डेटा होता है वो स्प्लिट होता है आपके छोटे छोटे फ्रेम्स में, ठीक है. एंड दैट फ्रेम कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम ट्रांसमिटर टू द रिसीवर साइड, ओके. तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन लगा हुआ 1 2 3 4 अप टू 10, ठीक है. तो ये जो नंबर ऑफ पैकेट्स है या फ्रेम्स है, ठीक है, तो अभी ये ट्रांसमिट हो गए थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम. तो इसके जो पाथ्स रहेंगे जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है, तो पाथ अलग अलग रहेंगे फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर डी. सपोज हमें ट्रांसमिट करना है, सो द पाथ्स आर डिफरेंट, ट्रांसमिशन पाथ्स आर डिफरेंट फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. तो इसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है कि सेकंड फ्रेम विल बी अराइव फर्स्ट, ये जल्दी पहुंच जाए शॉर्टकट पाथ से अगर ये गया, फिर उसके बाद आपका थर्ड आ जाए, ठीक है, फर्स्ट के बाद थर्ड, ठीक है, उसके बाद हो सकता है फोर्थ आ जाए, ठीक है.
तो इस तरह से zigzag मैनर में ये रिसीव हो गया एट द रिसीवर एंड। ओके, सो रिसीवर रिक्वायर्स द टाइम फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस तरह से ट्रांसमिशन में सीरियल वाइज ये ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है, वैसे ही एट द रिसीवर एंड इट विल फॉर्म इनटू द सीरियल, ठीक है, सीरियली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड इट रिक्वायर्स द टाइम, सो दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पैकेट्स अराइव अर्लियर इन द क्वीन, ठीक है। तो ये डिपेंड होगा कि किस तरह से पैकेट रिसीवर में रिसीव हो रहे हैं। विथ नो वेटिंग पैकेट्स इन द क्वी, सो क्यू डिले विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, बट इट रिक्वायर्स द टाइम, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा ये पैकेट्स को रिसीवर में रिसीव होने के लिए, ठीक है, एंड उसके बाद ये सीरियल वाइज अरेंज होंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्यू डिले एक्चुअली, ठीक है। अगर पैकेट इजीली अगर यहाँ पे आ जाते हैं रिसीवर साइड में, ठीक है, मीन्स डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरियल वाइज, so the queuing delay will be equal to 0. So queuing delay will be in order of microseconds or millisecond, ठीक है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, यानी बहुत ही कम एज कम्पेयर टू द मिली, एंड मिली इज 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा है, बट इट विल प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिले विल बी द ट्रांसमिशन डिले. So its name suggests that it is regarding to the transmission of packet. So first point, the packet are transmitted on first come first services, ठीक है। तो जो पैकेट ट्रांसमिट हो गए फ्रॉम सेंडर, ठीक है, दैट विल बी अ फर्स्ट ऑन फर्स्ट सर्व, ठीक है। सीरियल वाइज मीन जो पहले फर्स्ट आएगा, ठीक है, तो वो सेंड हो जाएगा, उसके बाद जिस तरह से सेकंड पैकेट मिलेगा वो सेंड हो जाएगा, देन थर्ड, ठीक है। So the particular packet can be transmitted only after the earlier packets are transmitted. तो जब फर्स्ट, सपोज ये फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो जब फर्स्ट पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, देन सेकंड पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड एंड ऑनवर्ड्स, ओके। तो इस तरह से पैकेट ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। सेकंड पॉइंट, ट्रांसमिशन डिले इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टोर एंड फॉरवर्ड डिले. It is the time required to transmit all the packet bits into the link. तो ट्रांसमिशन डिले इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है, ठीक है। टिपिकली ट्रांसमिशन डिले इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली सेकंड एंड माइक्रोसेकंड. सो देयरफॉर फॉर्मूला दिया है नीचे, ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू मैसेज साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ. तो ट्रांसमिशन डिले अगर कैलकुलेट करना है, सो वी रिक्वायर द मैसेज साइज, ठीक है। मैसेज साइज विल बी इन केबी, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, ओके, इट विल बी इन जीबी, ठीक है। तो कितने बिट्स का मैसेज है या इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसमिट करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ऑफ चैनल. जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होगा, ठीक है, तो उसका बैंडविड्थ कितना है, ठीक है, तो इसका रेशो, ठीक है, मैसेज साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. सो वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसमिशन डिले, ठीक है. थर्ड डिले इज अ प्रोपोगेशन डिले, ठीक है. The time required for packet bits to reach from beginning of the link to the desired router is called as a propagation delay, ठीक है. तो उसके नाम में ही मीनिंग है उसका. सपोज कंप्यूटर A wants to send a data to the computer B, okay. So computer A is the sender and computer B is the receiver. So the time required for the packet bits to reach from the beginning of the link means beginning कहाँ हुआ है लिंक का, मीन्स सेंड कौन कर रहा है, कंप्यूटर A, okay. Destination is computer B, okay. So the time required to receive the packet from the beginning to the end computer, so that time is called as a propagation delay, ठीक है. The signal travel at a speed which is slightly less than that of light, ठीक है. तो आपको पता है कि लाइट का जो स्पीड है उससे कम ही रहेगा इसका स्पीड, ठीक है, क्योंकि लाइट का स्पीड अभी तक यूनिवर्स में कोई अचीव कर नहीं पाया है, ठीक है, यूनिवर्स में, ठीक है. तो जो ये सिग्नल का जो स्पीड रहेगा, सो दैट इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, वेदर इट इज़ अ फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है. तो फाइबर ऑप्टिक केबल भी अगर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज़ थ्रू अ लाइट, ठीक है, तो उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, सो दैट इज़ अ स्पीड इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट.
नेक्स्ट पॉइंट, सो द प्रोपोगेशन डिले इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल टू बाय द सिग्नल टू द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है, इसका रेशियो ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिग्नल का स्पीड। ठीक है, इस कितना डिस्टेंस है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो ये दोनों पे डिपेंड होगा आपका प्रोपोगेशन डिले, एंड प्रैक्टिकली द प्रोपोगेशन डिले इज इन ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली सेकंड। ठीक है, इट इज़ इन मिली सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेकंड पैरामीटर है डिले। ठीक है, थर्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर है आपका जिटर। तो पहले हम जिटर का डेफिनेशन देखते हैं। द डिले इंट्रोड्यूस बाय द डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ नॉट कांस्टेंट। तो जो डिले इंट्रोड्यूस होगा डेटा कम्युनिकेशन में वो कांस्टेंट नहीं है, दैट कैन बी अ वेरी। ओके, सो इट वेरीज पैकेट टू पैकेट। अब किस तरह से वेरी होगा ये, पैकेट टू पैकेट मीन्स कितने आपके पैकेट्स है, तो हर पैकेट के लिए जो डिले रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि प्रोपोगेशन स्पीड, ठीक है, ट्रांसमिशन स्पीड, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिले। तो डिले के लिए ये अलग अलग पैरामीटर्स है। ठीक है, तो हर पैकेट के लिए ये वैल्यूज़ अलग अलग रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो डिले दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, सो द जिटर मेजर्स द variability in packet delays and it is measured in terms of difference of minimum delay and maximum value of delay। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि डिले जो है, डिले इज़ नॉट कांस्टेंट इन डेटा कम्युनिकेशन एंड इट विल वेरी विथ पैकेट टू पैकेट। तो सपोज फर्स्ट पैकेट को कुछ टाइम अलग लगेगा, सेकंड को अलग रहेगा, थर्ड को अलग लगेगा, फोर्थ हो सकता है उससे फास्ट चला जाए। तो कांस्टेंट डिले कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो वेरी हो रहा है। ठीक है, बट अभी हमें अगर एवरेज डिले निकालना है, मीन्स मिनिमम कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम कितना डिले होगा। ठीक है, एवरेज अगर निकालना है, एवरेज मिनिमम टाइम एंड एवरेज मैक्सिमम टाइम, सो इसके लिए जो पैरामीटर होगा मेजरमेंट का, दैट इज़ अ जिटर। सो दैट इज़ अ जिटर। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम डिले एंड मैक्सिमम डिले value। Okay, so jitter is defined as the variation in delay for packets belonging to the same flow। ठीक है, तो जो पैकेट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो वेरिएशन हो रहा है टाइमिंग का, जो डिले अलग अलग वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली जिटर। So the real time audio video cannot tolerate the jitter। On other hand, the jitter does not matter if the packet are carrying any data information contained in a file। ठीक है, तो अगर फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, सो इट इज़ ओके टू हैव अ मिनिमम एंड मैक्सिमम डिले, बट इन केस ऑफ ऑडियो ओके एंड वीडियो, तो इसमें डिले नहीं चाहिए। जैसे अभी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो या ऑडियो सुन रहे हो, अगर ऑडियो में डिले आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो मैसेज ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, रीडर्स के लिए और ऑडियंस के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपरली कन्वे नहीं होगा अगर देर इज़ अ डिले इन द ऑडियो। मीन्स वहाँ पे जो स्पीकर बोल रहा है एंड उसमें अगर डिले आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मैसेज ओवरलैप हो जाएगा। तो जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, ठीक है, तो उनको वो समझ में नहीं आया कि स्पीकर क्या मैसेज कन्वे कर रहा है या क्या वो बोल रहा है। ठीक है, सेम वे इन द वीडियो ऑल्सो। ठीक है, वीडियो और ऑडियो में अगर डिले आ गया, मीन्स वीडियो आपका फास्ट चल रहा है एंड ऑडियो में डिले, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। ठीक है, सो जिटर आपके ऑडियो और वीडियो में टॉलरेट नहीं होगा, मीन्स वहाँ पे जिटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इन केस ऑफ फाइल इट इज़ ओके। ठीक है, एवरेज डिले उसमें हो सकता है। फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन इफ द पैकेट्स टेक 20 मिलीसेकंड to 30 millisecond delay to reach the destination, it doesn't matter provided that the delay remains constant। ठीक है, तो उसमें जो टॉलरेंस दिया है 20 मिलीसेकंड और 30 मिलीसेकंड का डिले एक्सेप्टेबल है इन केस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, सो जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं,
अगर नेटवर्क का स्पीड नहीं है तो आपको पता है कि वहाँ पे बफर होता है, ठीक है। तो बफर का जो साइज़ है तो वो भी लिमिटेड है। मीन्स ऐसा नहीं कि अब अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं एंड वहाँ पे 20 मिनट तक बफर ही हो रहा है क्योंकि पैकेट्स अराइव नहीं हुए आपके मोबाइल पे डेस्टिनेशन पे सर्वर से, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, उसका भी एक टाइम लिमिट होता है कि कितना टाइम बफर होगा। अगर वो बफर उतने टाइम तक वो वेट करेगा कि पैकेट अगर रिसीव होता है उतने टाइम में, तो वो वीडियो को क्या कर देगा, प्ले कर देगा, ठीक है। अगर वो रिसीव नहीं होता है तो वहाँ पे एरर दिखाएगा आपको, टाइम आउट, वीडियो टाइम आउट, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सो 20 मिली सेकेंड एंड 30 मिली सेकेंड का जो डिले ऑडियो वीडियो में, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। Next point in jitter is the quality of sound or video will be hampered if delay associated with different packets have different values, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि साउंड एंड वीडियो का जो क्वालिटी होगा, ठीक है, तो ये डिले की वजह से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंट डिलेज इन द फॉर द डिफरेंट पैकेट्स, ठीक है। तो पैकेट्स में जो अलग अलग डिलेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो साउंड एंड वीडियो का क्वालिटी वो क्या होगा, हैम्पर होगा, मीन्स डिस्टर्ब होगा, ठीक है, या क्वालिटी डिग्रेड होगा, ठीक है। सो अभी डिले को हम जिटर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ पैकेट अराइव एट द राउटर विल चेक टू सी वेदर द पैकेट इज बिहाइंड और अहेड एंड बाय व्हाट टाइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही पैकेट रिसीव होगा राउटर में, ठीक है, सपोज आर इज़ द राउटर, ओके, एंड दैट इज़ अ पैकेट, इट कंसिस्ट ऑफ डिजिटल डेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा राउटर, इट विल फर्स्ट चेक आउट दैट द पैकेट इज़ बिहाइंड, तो पीछे या आगे का पैकेट है, ठीक है, एंड बाय व्हाट टाइम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वीडियो का साइज़ बड़ा है तो उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पैकेट के सीक्वेंस में, ठीक है। सपोज़ वहाँ पे 10 पैकेट है अलग अलग, ठीक है। तो सपोज़ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, वी मीन्स वीयर वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर पैकेट्स में, ठीक है। अभी सपोज थर्ड पैकेट फर्स्ट अराइव हुआ, उसके बाद आपका सेकंड पैकेट आया, तो राउटर क्या करेगा, फर्स्ट चेक करेगा कि फर्स्ट पैकेट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पैकेट है सपोज आपका सेकंड है, उसके बाद वो काउंट कराएगा थर्ड पैकेट को, मीन्स सीरियल वाइज इसको क्या करेगा, ये अरेंज करेगा राउटर। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द पैकेट एंड अपडेट एट एवरी होप, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सीरियल वाइज जो ये पैकेट्स यहाँ पे रिसीव होंगे, ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन पैकेट में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। इफ़ द पैकेट इज़ अहेड ऑफ द शेड्यूल, मीन्स जो पैकेट अर्ली आ रहा है, ठीक है, देन द शेड्यूल टाइम, देन द राउटर विल होल्ड इट फॉर स्लाइटली लॉन्गर टाइम, ठीक है। सपोज ये फोर्थ पैकेट है और ये सबसे पहले यहाँ पे आ गया एज़ कम्पेयर टू द 3, 1 एंड 2, तो ये क्या करेगा, फोर्थ पैकेट को वहाँ पे रिसीव कर लेगा एंड वहाँ पे स्टॉप कर देगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिसीव होंगे तो उसके साथ वो कनेक्ट कर देगा फोर्थ को, ठीक है, सीरियल वाइज, एंड दैट डेटा विल बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से दिस विल हेल्प इन कीपिंग द एवरेज डिले पर पैकेट कॉन्स्टेंट, दिस विल अवॉइड द टाइम जिटर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एवरेज डिले पर पैकेट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीरियल वाइज सभी जब पैकेट्स यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे राउटर में, तभी वो आगे सेंड कर देगा अनदर राउटर इन नेटवर्क, ठीक है। तो इसकी वजह से जो जिटर होगा तो दैट जिटर विल बी कंट्रोल, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन डिले एंड जिटर, तो डिले और जिटर में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। एंड टू एंड डिले, एंड टू एंड डिले इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, जैसे हमने एग्जांपल लिया सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ डिले इज कॉल्ड एज अ एंड टू एंड डिले, ठीक है। जिटर इज डिफाइंड एज द वेरिएशन इन डिले फॉर पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो, ठीक है। तो जिटर क्या होता है आपका, वेरिएशन इन द डिले फॉर द पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो, मीन्स एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। मीन्स ए टू बी, अगर सपोज ए कंप्यूटर सेंड द डेटा टू द बी कंप्यूटर, so the direction of flow will be in the same direction A to B,
So that type of delay is called as a jitter. This is the difference between end to end delay and jitter. ठीक है, तो ये एक मेन डिले है. ठीक है, डिफरेंस है जिटर एंड डिले में. ठीक है, and next performance parameter is the throughput. Okay, so first point in throughput is the throughput is the parameter which is used to know the speed of data transmission over a network. ठीक है, तो ये क्या मेज़र करता है? स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क. सेकंड पॉइंट, द थ्रूपुट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइन एज एक्चुअल रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज सेंड ओवर द चैनल. ठीक है, मीन्स एक्चुअल किस रेट से इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है थ्रू द चैनल. चैनल कौन सा? आपका ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है, सो इट इज़ मेजर्ड इन बीट पर सेकंड और फ्रेम पर सेकंड. तो इसका जो मेज़रमेंट का यूनिट है वो बीट पर सेकंड है, फ्रेम पर सेकंड है. ठीक है, सो थ्रूपुट फॉर अ सिस्टम इज़ द एक्चुअल रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज सेंड ओवर द चैनल. ओके, सो थ्रूपुट इज़ मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी नेटवर्क. तो ये एक मेजर पैरामीटर है टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सिस्टम दैट कैन बी एनालॉग और डिजिटल. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली थ्रूपुट. तो इस तरह से हमने डिफरेंट पैरामीटर का स्टडी किया जो कि एक सिस्टम के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए नेसेसरी. दैट विल बी अ बैंडविड्थ, डिले, जिटर एंड थ्रूपुट. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए. एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स और द डिफरेंट पैरामीटर्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको लिस्ट करना है जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, एंड उसके बाद वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे बैंडविड्थ, जिटर, डिले एंड थ्रूपुट. ठीक है, सो दैट विल एंड आवर सी पार्ट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल लेयर. ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है फिजिकल लेयर का. ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 में आपके 4 पार्ट्स है, ए, बी, सी एंड डी. ओके, सो ए, बी, सी आर कंप्लीटेड. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डी पार्ट स्टार्ट करेंगे, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन. तो उसमें अलग अलग जो तरीके एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन के, ठीक है, ए टू डी टू ए कन्वर्टर, तो कौन सी टेक्निक्स उसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, तो उसका डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. ओके, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. सो थैंक यू.